Dear students, our topic is integration round the unit circle. In calculus of residue, we shall study today integration round the unit circle. In the present section, we shall discuss the integral of certain functions around the unit circle. For this, let us consider an integral of the form integral 0 to 2 pi phi cos theta sin theta d theta, where integrand means phi function of cos theta sin theta is a rational function of cosine and sine. To evaluate such type of integrals, first of all, we consider a unit circle. We consider a unit circle whose center is at origin, and therefore, for any point z on this circle, we can write z equals e to the power I theta. And this will give dz equals I e to the power I theta d theta, or we may write d theta is equal to dz upon I e to the power I theta, or we may write dz upon I iota e to the power I theta is equal to z. Therefore, we might d theta is equal to dz upon iz. For this circle, variation of theta will be less than or equal to 2 pi and greater than or equal to 0. And now we can write the given integral I as integral 0 to 2 pi function of cos theta sin theta d theta. And now first of all we reduce it in the form of exponential function. So we know that in place of cosine theta we can write e to the power I theta plus e to the power minus I theta upon 2. And in place of sin theta we can write e to the power I theta minus e to the power minus I theta upon 2i. ऐसे लिख सकते हैं इंटू डी थीटा. ये हो गया आपका. अब कहा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. अब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्या किया, चूंकि जिस इंटीग्रल को हम डिस्कस कर रहे हैं राउंड द यूनिट सर्किल, तो कहा अगर एक यूनिट रेडियस का सर्किल हम कंसीडर करें जिसका सेंटर कहाँ पर हो, ओरिजिन पर, सी सच दैट मॉड जेड इज इक्वल टू 1, तो कहा तब तो हम लिख सकते हैं फॉर एनी पॉइंट जेड on this circle we can write z equals e to the power I theta, and so that we can write dz equals I e to the power I theta d theta, और डिफ्रेंशिएट करके सिंप्लीफाई करने पर d थीटा इक्वल्स हो जा रहा है dz अपॉन iz. कहा तो जो इंटीग्रल दिया गया I इक्वल्स इंटीग्रल 0 टू पाई रेशनल फंक्शन ऑफ कोसाइन थीटा साइन थीटा d थीटा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं. अब यह जानते हो कि कोसाइन थीटा और साइन थीटा को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है. अब इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू 2 पाई, सॉरी इंटीग्रल टेकन ओवर सी, नॉट 0 टू पाई, इंटीग्रल टेकन ओवर सी फाई e to the power I theta. In place of e to the power I theta we can write z. तो therefore in place of e to the power minus I theta we can write z to the power minus 1 upon 2. And similarly ये हो जाएगा z minus z to the power minus 1 upon 2i. and d थीटा के प्लेस पे हम लिख सकते हैं dz upon iz. ये कैलकुलेट कर चुके हैं. डी थीटा की जगह लिख दिया dz अपॉन आई जेड, और e टू दी पावर आई थीटा की जगह z, और e टू दी पावर माइनस आई थीटा की जगह z टू दी पावर माइनस 1. अब जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर जो रिजल्ट आएगा उसको हम कह सकते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड. सिंप्लीफाई करने जो आएगा इसको मान लिया गया कहा सी, और टेकन ओवर सी. सी क्या है, पर सी इज एक सर्किल सच दैट मॉड जेड इज इक्वल टू 1.
and fz is a rational function of z, and now this can be solved with the help of Cauchy's residue theorem. Cauchy's residue theorem. अब Cauchy's थ्योरम की हेल्प से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम वी शैल टेक एनी एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल लेते हैं का यूज द मेथड ऑफ कंटूर इंटीग्रेशन टू प्रूव दैट इंटीग्रल 0 to 2 pi 1/1 plus a square minus 2a cos theta d theta equals 2 pi upon 1 minus a square, where it is given that a is less than 1 and greater than 0. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन राउंड द यूनिट सर्किल जानने के लिए करने के लिए वहां दो चीजें कही गई थी. एक तो कहा गया था कि लिमिट 0 to 2 pi होना चाहिए. दूसरा कहा गया था इंटीग्रेंड रैशनल फंक्शन ऑफ कोसाइन या रैशनल फंक्शन ऑफ साइन या रैशनल फंक्शन ऑफ कोसाइन एंड साइन हो सकता है. तो लिमिट भी 0 to 2 pi है और दिया गया इंटीग्रेंड रैशनल फंक्शन ऑफ कोसाइन है. इसका मतलब हम ये विचार कर सकते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन राउंड द यूनिट सर्किल का हेल्प हम ले सकते हैं. तो कहा लेट आई इक्वल्स इंटीग्रल 0 to 2 pi 1/1 plus a square minus 2a cos theta d theta का. अब सबसे पहले आपको समझाया गया था कि कोसाइन हो साइन हो उसकी जगह पर हम उसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे. लेकिन इनकेस यह भी ध्यान रखने वाली बात है अगर न्यूमरेटर में कोसाइन टर्म होता तो उसकी जगह पे हम लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर आई थीटा. अगर न्यूमरेटर में साइन थीटा होता, साइन थीटा अपान ये होता, तो हम लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आई थीटा. सिर्फ डिनोमिनेटर के लिए बात की जा रही है कि कोसाइन थीटा होगा तो हम लिखेंगे e टू द पावर आई थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2. अगर यहाँ पे साइन थीटा होता तो लिखते e टू द पावर आई थीटा प्लस माइनस e टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2. कॉस 2 थीटा होता तो इसी अनुसार चेंज कर लेते e टू द पावर आई 2 थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आई 2 थीटा अपॉन 2. इस तरीके से करते. फिर का फॉर यूनिट सर्किल तो z इक्वल्स आप पहले ही कह चुके हैं e टू द पावर आई थीटा, तो का पुटिंग z इक्वल्स आई थीटा का सो दैट d थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा dz अपॉन आई जेड. तो रखते हैं. तो सबसे पहले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया. अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बाय सब्स्टिट्यूशन हम कन्वर्ट कर रहे हैं अलजेब्राइक फंक्शन में. तो हो जाएगा इंटीग्रल टेकन ओवर c 1/1 प्लस a स्क्वायर माइनस a e टू द पावर आई थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2 से यह 2 कैंसिल हो गया है. तो e टू द पावर आई थीटा की जगह z और e टू द पावर माइनस आई थीटा की जगह 1/z लिख दिया और d थीटा की जगह लिख दिया गया dz अपॉन आई जेड. फिर सी जे यूनिट सर्किल बार बार बोला जा रहा है और सी जे यूनिट सर्किल सच दैट मॉड z इज इक्वल टू 1 अपॉन आई बाहर ले लेंगे. यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लिया और इसको एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो हो जाएगा ए जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जेड माइनस जेड प्लस ए विथ रिस्पेक्ट टू जेड. फैक्टर करेंगे इन दोनों में ए जेड कॉमन हो जाएगा, इसमें -1 कॉमन हो जाएगा. सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरीके से आएगा -1 अपॉन आई इंटीग्रल टेकन ओवर सी 1 अपॉन ए जेड -1 इंटू जेड माइनस ए विथ रिस्पेक्ट टू जेड. ये फैक्टर करने पर मिलेगा. आपको बता भी चुके कि इसमें से ए जेड कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा जेड माइनस ए और इसमें से -1 कॉमन लेंगे तो आएगा जेड माइनस ए. फिर दोनों में से जेड माइनस ए कॉमन होकर के बचेगा ए जेड -1. अब चूंकि ये देखेंगे यह आपका दिया गया प्रॉब्लम पहले कोसाइन साइन से किस में कन्वर्ट हुआ एक्सपोनेंशियल में, एक्सपोनेंशियल से धीरे धीरे करके किस में कन्वर्ट हो गया अलजेब्राइक फंक्शन में. अब इसी को कहा गया था आप क्या मान लीजिएगा एफ जेड. तो कहा -1 अपॉन आई या ऐसे रहने दिया इंटीग्रल टेकन ओवर सी एफ जेड डी जेड मान लिया गया. कहा से इट इज इक्वेशन नंबर 1. कहा वेयर एफ जेड इक्वल्स 1 अपॉन जिसको एफ जेड आपने कहा 1 अपॉन ए जेड -1 इंटू जेड माइनस ए. और सी के बारे में बता दिया गया कि सी इज ए यूनिट सर्किल सच दैट मॉड जेड इज इक्वल टू 1 और वेरीफाई कर दिया गया. कहा गया अब इस फंक्शन का पोल निकालें. चूंकि अब इस पे आपसे कहा गया था कि कॉशीज रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे किसके लिए इंटीग्रल टेकन ओवर सी एफ जेड डी जेड के लिए कॉशीज रेसिड्यू थ्योरम. और कॉशीज रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई करने के लिए पहले फंक्शन एफ जेड का क्या निकालना होगा पोल. तो एफ जेड तो यही है तो इसका पोल निकालने के लिए डिनोमिनेटर को 0 करेंगे. तो देखेंगे पोल निकालने तक द पोल्स ऑफ द फंक्शन एफ जेड आर गिवन बाई डिनोमिनेटर को 0 किया ए जेड -1 जेड माइनस ए इज इक्वल टू 0. तो ए जेड -1 को 0 करेंगे तो जेड इक्वल्स मिलेगा 1 अपॉन ए और जेड माइनस ए को 0 करेंगे तो जेड इक्वल्स मिलेगा ए.
अब देख सकते हैं दो पोल मिला, क्योंकि दोनों का ही आर्डर क्या है, 1 है, इसका दोनों के दोनों पोल सिंपल पोल हैं। तो कहा आउट ऑफ दीज 2 सिंपल पोल्स, देखने वाली बात है कि क्या दोनों पोल यूनिट रेडियस के सर्किल में लाई करेंगे या सिर्फ एक पोल लाई करेगा। तो चूंकि जो कंडीशन इसके साथ दिया गया है, कंडीशन था कि ए जो कुछ भी है वह 1 से छोटा और 0 से बड़ा है। तो ए अगर 1 से छोटा, इसका मतलब ये यूनिट रेडियस के सर्किल में ए तो लाई करेगा। लेकिन अगर इसको हम a से डिवाइड कर दे तो 1/a तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, 1/a ग्रेटर देन 1, इसका 1/a यूनिट रेडियस के सर्किल में लाई नहीं करेगा। तो कहा आउट ऑफ दीज 2 सिंपल पोल, सिंपल पोल क्यों बोला कि बिकॉज पोल ऑफ ऑर्डर 1 पावर 1 बना रहा है, az-1 का भी पावर 1 है, z-a का भी पावर 1 है। तो कहा इन दोनों सिंपल पोल्स में से सिर्फ एक पोल z इक्वल्स a हमारे द्वारा कंसीडर किए गए यूनिट रेडियस के सर्किल में लाई करेगा। तो जब सिर्फ एक ही लाई करेगा, एक आउटसाइड में चला गया, तो इसी पोल पर हम रेजिड्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि कासिज रेजिड्यू थ्योरम कहता है कि वी कैन कंप्यूट द रेजिड्यू ओनली एट दोज पोल्स व्हिच लाइज विद इन द क्लोज्ड कंटूर सी। तो हमारा क्लोज्ड कंटूर एक यूनिट रेडियस का सर्किल है और उस यूनिट रेडियस के सर्किल में चूंकि ए ही लाई कर रहा है तो हम ए पर ही रेजिड्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और इसको हम ड्रॉप कर देंगे। तो कहा सिंपल पोल पे रेजिड्यू कैलकुलेट करने का फार्मूला आपको याद आ रहा होगा कि रेजिड्यू एट जेड इक्वल्स ए को लिमिट जेड टेंस टू ए इक्वल्स लिमिट जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए इंटू एफ जेड, ये फार्मूला आपको याद आ गया। अब इसमें एफ जेड की जगह हम एफ जेड जो हमारे पास है, एफ जेड क्या है, 1/a(z-1) इंटू z-a सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और जब आप इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये देखा जाए, ये हो जाएगा लिमिट जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए, 1/f(z) की जगह लिखा 1/az-1 इंटू z-a। ये z-a कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, 1/az-1। अब लिमिटिंग ऑपरेशन इस पर अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1/z की जगह ए रखेंगे तो 1/a²-1 इतना आ गया। अब कहा गया कॉसिस थ्योरम लगाएंगे, तो कहा हैंस बाय कॉसिस रेजिड्यू थ्योरम होता क्या है, एक इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू जेड टेकन ओवर सी इज इक्वल टू होता है 2 pi इंटू सम ऑफ द रेजिड्यूज ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट इट पोल्स लाइज विद इन द क्लोज्ड कंटूर सी। और क्लोज्ड कंटूर यूनिट रेडियस का सर्किल और उसमें सिर्फ एक ही पोल लाई करता, उस पोल पर रेजिड्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं। तो आया क्या है, 1/a²-1, मतलब कुल मिला के आ गया 2 pi a/a²-1। अब इंटीग्रल अलोंग सी एफ जेड डी जेड तो हमको मिल गया। अब इस वैल्यू को जहां पर हमको सब्स्टिट्यूट करना वहां पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिएगा ये था, आपने कहा था i इक्वल्स -1/i इंटीग्रल अलोंग सी एफ जेड डी जेड टेकन ओवर सी, तो इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कहा था। अब इसकी जगह इंटीग्रल अलोंग सी एफ जेड डी जेड जो आया विद द हेल्प ऑफ कॉची रेजिड्यू थ्योरम, जिसे आपने इक्वेशन नंबर 2 कहा है, उस इक्वेशन नंबर 2 को ला करके हम उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो i इक्वल्स क्या हो जाएगा, -1/i पहले सी है और इंटीग्रल अलोंग सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू आपको मिला है 2 pi a/a²-1, i से i कैंसिल हो जाएगा, फाइनली माइनस से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 2 pi/1 a²। दस द रिजल्ट ऑफ द गिवन इंटीग्रल इज इंटीग्रल 0 to 2 pi 1/1 + a² - 2 a cos थीटा डी थीटा इक्वल्स 2 pi/1 - a²। तो एक चीज क्लियर कट आपको समझ में आना चाहिए कि इंटीग्रेशन अराउंड द यूनिट सर्किल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ध्यान रखने की बात हो रहा है कि लिमिट नंबर 1 लिमिट 0 to 2 pi होना चाहिए। दूसरा नंबर फंक्शन या तो रेशनल फंक्शन आप कोसाइन हो या रेशनल फंक्शन आप साइन हो या रेशनल फंक्शन आप कोसाइन एंड साइन हो, ये उसकी पहचानने का तरीका है। और बाकी सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पहली सावधानी कहा गया, पहली सावधानी जो बरतनी है कि अगर न्यूमरेटर में साइन या कोसाइन आया तो उसकी जगह हम रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट के रूप में लिखते हैं। कोसाइन थीटा है तो रियल पार्ट ऑफ e⁻i थीटा लिखेंगे, साइन थीटा आया है न्यूमरेटर में तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻i थीटा लिखेंगे। अगर cos 2 थीटा आया है तो रियल पार्ट ऑफ e⁻i 2 थीटा लिखेंगे। साइन 3 थीटा न्यूमरेटर में आया तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻i 3 थीटा लिखेंगे। बट डिनोमिनेटर के लिए जो आप जानते हैं cos थीटा इक्वल्स e⁻i थीटा प्लस e⁻i थीटा अपॉन 2, और साइन थीटा के लिए यूज करते हैं e⁻i थीटा माइनस e⁻i थीटा अपॉन 2i, ये आप लिखते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि पहले हम पहचानने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बाय सब्स्टिट्यूशन अलजेब्राइक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फिर आफ्टर दैट कॉची रेजिड्यू थ्योरम लगा करके
हम पोल पर रेजिड्यू कैलकुलेट कर लेंगे, हमको दिए गए प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। एंड दैट इज टुडे टॉपिक।